Hello students, we have started our lesson that is molecular basis of inheritance, and today we are going to discuss the transcription part. We have studied the transcription in prokaryotic cell in detail. Today we are going to discuss this transcription process in the eukaryotic cells. ओके सो ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट प्रोसेस इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड because in bacteria mRNA does not require any processing as it doesn't contain introns. Introns are the segments which are absent in the prokaryotic cells. Okay, but when you talk about the eukaryotic cell, in the eukaryotic cells there are the introns and exons, they are found to be present. So the transcription unit and the gene, today we are going to discuss this part. The DNA sequence coding for mRNA, tRNA or rRNA, that means messenger RNA, ribosomal RNA or tRNA, so is defined as a gene. So cistron is a segment of DNA coding for a पॉलीपेप्टाइड. तो यहाँ पे सिस्ट्रॉन एक यूनिट है या सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसको हम बोलते हैं विच कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड या फिर अ प्रोटीन. सो अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक. अभी आप समझ सकते हो monocystronic. Mono means single, so this is mono means single. Okay, so a single structural gene, if you're talking about a single structural gene in the transcription unit, then it is called as monocistronic. And what is a cistron? Cistron is a segment of DNA coding which codes for a polypeptide or a protein. So a long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred as polycistronic. So in polycistronic part, the DNA, there are many DNA sets are present. Okay, so many segments of DNA, when they are involved in the structural genes, then that is called as, or that is referred as polycistronic. So structural genes in eukaryotes have interrupted non-coding sequences. Now जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, तो उनमें कुछ इंटरप्शंस होते हैं, इंटरप्टेड जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है. तो इन सारे सीक्वेंसेस को बोला जाता है इंट्रॉन्स. द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंसेस कोड करते हैं या कोडिंग सीक्वेंसेस है या जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उन सीक्वेंसेस को बोला जाता है एक्सॉन्स. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स. एक्सॉन्स खुद को कोड करते हैं, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं. ओनली एक्सॉन्स अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए इन यूकैरियोट्स. तो इनमें जो ये हम पार्ट जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो है फर्दर प्रोसेसिंग. मैसेंजर आरएनए बन गया, सो दैट मैसेंजर आरएनए इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या मैच्योर आरएनए नहीं है, प्री मैच्योर एमआरएनए प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो उसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है जहाँ पे ये है प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन ए. व्हाट इज दिस एच एन आर एन ए? What do you mean by HN? HN means heterogeneous nuclear RNA. Okay, so that is the meaning of HN. So in eukaryotes, forms of RNA transcribed from DNA are called primary transcripts. ये क्या है? Primary transcript है. कौन से? जो DNA से transcribe होते हैं. Such transcripts undergo changes which are called as processing or मैचुरेशन. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो मैसेंजर आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में मिलता है उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए. उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होता है और उस प्रोसेसिंग के बाद हमें जो मैच्योर आरएनए मिलता है वो है मैचुरेशन, या जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो आफ्टर प्रोसेसिंग मिलता है उसको हम बोलते हैं मैच्योर्ड आरएनए.
So primary transcript is non-functional and it contains both exons and introns. जैसे कि मैंने आपको बताया exons कोडिंग सीक्वेंसेस है और इंट्रॉन्स क्या है, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है. तो हमें सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए, इंट्रॉन्स नहीं. पर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पे दोनों भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग क्या होता है, only introns are removed by the process that is called as splicing. splicing मतलब कट करना. तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग होता है. स्प्लाइसिंग होने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज आरएनए स्प्लाइसिंग. तो आरएनए स्प्लाइसिंग में ये जितने भी इंट्रॉन्स के सेगमेंट्स हैं वो निकाले जाते हैं, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं. दीज आर द इंट्रॉन सीक्वेंसेस जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं. सो दीज आर द इंट्रॉन सीक्वेंसेस जो कॉइल होके आरएनए स्प्लाइसिंग से इसको कट किया जाता है, स्प्लाइस किया जाता है, जिसके बाद हमें ये विदाउट इंट्रॉन्स सिर्फ येलो कलर जो पार्ट हमको दिख रहा है दैट इज द एक्सॉन. ओके, तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है. वो वाला पार्ट है हमारा मैच्योर आरएनए. अभी एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफिनाइट सीक्वेंस और डिफिनाइट ऑर्डर बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम. डीएनए लाइगेज का काम है जितने भी सेगमेंट्स यहाँ पे है उन सेगमेंट्स को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स को तो निकाल दिया, अभी एक्सॉन्स ही है यहाँ पे, तो उनको जोड़ने का काम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंट्रॉन्स निकल गए. ये अगर इंट्रॉन्स निकल गए तो इनके रिमूवल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी एम्प्टी स्पेस या फिर there will be blank space. So that blank spaces, those blank spaces, these are removed and these are joined by DNA ligase enzyme. So heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA, it undergoes process of capping and tailing. यहाँ पे RNA splicing के बाद होता है capping. ये है capping और यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन है जिसको बोला जाता है पॉली ए टेल, जिसको प्रोसेस को बोला जाता है टेलिंग. ओके, सो इन कैपिंग मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 प्राइम एंड. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 5 प्राइम एंड. ओके, सो 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखो CAP कैप ऐड हो रहा है. ये कैप क्या है, methylated guanosine triphosphate. This M stands for methylated, G for guanosine, and there are 3 P, that means triphosphates. Okay, so methylated guanosine triphosphates, these are added to the 5 prime end of the heterogeneous nuclear RNA, and that process is called as capping. In the tailing process, now you can see the opposite end, polyadenylation. ये कौन से end को हो रहा है, यहाँ पे है 3 prime end. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, in tailing polyadenylation take place at the 3 prime end. It is the fully processed heterogeneous nuclear RNA. Now it is called as mRNA. For translation, mRNA is transported out of nucleus through the nuclear pore. अभी हम इसी प्रोसेस को देखते हैं कि ये RNA स्प्लाइसिंग, कैपिंग या पॉलीएडिनाइलेशन जो है जिसको हम बोलते हैं टेलिंग, ये क्यों है, ये हम इस एनिमेशन में अभी देखने की कोशिश करते हैं. We'll watch this animation now. Yep. So this was the first section of this process in which the DNA is used to produce our RNA molecule. This RNA is known as the pre-mRNA or the pre-messenger RNA. The prefix is used here to show that this mRNA is not yet ready to leave the nucleus and start the process of translation. So that अभी आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये जो हमें मिला है वो है प्री mRNA, जिसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है. अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है कि कोई भी आरएनए को कैपिंग हो या टेलिंग हो, पॉलीएडिनाइलेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है. book
and you have printed all the pages. Now you cannot sell the book yet because the new book needs covers, both front and back. Also, before selling it, it is important to check for any blank or wrong pages that may have been inserted. These two processes essentially represent how the pre-mRNA is processed. The first step involves addition of a cap and a tail to the ends of this pre-messenger RNA molecule. These caps and tails are short amino acid sequences that protect the pre-mRNA molecule. The free ends of the pre-mRNA are liable to attack from many enzymes. The cap and the tail covers these ends. तो अभी आपको समझ में आया, जैसे अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई ऑथर बुक लिखता है तो वो बुक उसी तरह से वो पब्लिश नहीं कर सकता. वो बुक प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा कि जितना भी पेजेस उसने लिखा है उसमें वो कुछ रॉन्ग है या कुछ गलत लिखा हुआ है, उस प्रूफ रीडिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, और उसके बाद उसको फ्रंट कवर होना चाहिए, उसको बैक कवर होना चाहिए, उसको टाइटल होने चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए. तो ये सब हो जाने के बाद ये जो सब कुछ है वो है प्रोसेसिंग. वो प्रोसेसिंग होने के बाद ही कोई बुक कोई ऑथर सेल कर सकता है, ओके, बेच सकता है. तो वो टाइम पे ही उसका प्रिंटिंग कंप्लीट हो सकता है या कंप्लीट हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं. इन द सेम वे ये जो कैप है या फिर ये जो टेल है, ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है. तो ये दोनों एंड्स में ये कैपिंग है और ये जो टेलिंग प्रोसेस है यूकैरियोटिक mRNA में, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स इन फ्री एंड्स को, अगर यहाँ पे कैप्स ना हो, कैपिंग ना हो या फिर टेलिंग ना हो, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे एंजाइम इस फ्री एंड पे अटैक कर सकते हैं. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको सिक्योर किया जाए. जितना भी ये मैसेंजर आरएनए का सेगमेंट है जिसको हम मैच्योर मैसेंजर आरएनए बोल रहे हैं, वो सेफ रहे, तो उस पर कोई भी एंजाइम्स अटैक ना करे. तो इसके लिए ये कैपिंग और टेलिंग दोनों प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए. The second step of this process involves removal of any unuseful or junk sequences that do not code for proteins, and these are known as introns. अभी आपने देखा ये जो है कैपिंग टेलिंग तो हो गया. अभी ये जो मैसेंजर आरएनए है इसमें कुछ जंक सेगमेंट्स है. जंक सेगमेंट्स मतलब इंट्रॉन्स, जो सेगमेंट्स कोई भी इंफॉर्मेशन कोड नहीं करते हैं. तो जो सेगमेंट्स कोई भी इंफॉर्मेशन कोड नहीं करते हैं उन सेगमेंट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेप वो जो कोड नहीं कर रहे हैं या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है या जंक सेगमेंट्स है, उनको निकाला जाता है. तो ये जो अभी आप देख रहे हो, दिस सीजर इज यूज्ड टू शो that these segments they are removed. That is known as splicing. This is known as RNA splicing, in which the protein RNA complex known as the spliceosome removes these non-coding parts. The rest of the DNA is then joined again together to create a mature RNA molecule. So this was a brief look at the process of transcription. तो होपफुली आपको अभी समझ में आ गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA या हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए टू mRNA इन यूकैरियोट्स क्यों है. इस पे आपको स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर इसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है जैसे पॉलीएडिनाइलेशन है, कैपिंग है, ओके, तो ये कहाँ पे होता है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स क्या है, ये सब कुछ आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, ये सब कुछ आपको पूछा जा सकता है. सो दैट सेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर आप इसको स्टेप वाइज याद करो, वीडियो को ठीक से देखो और जितने भी आपके बुक में जो ये नोट्स दिए हुए हैं, अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करो तो ये पार्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा. अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ द जेनेटिक कोड दैट वी विल सी इन अवर next lecture. So that's all for today's session. Hope you have enjoyed today's session. That's all. Thank you.